السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں نا؟ بچوں، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا بہت اچھی عادت ہے۔ صبح صبح پڑھائی کرنا تو اور بھی اچھی عادت ہے۔ صبح کے وقت ہمارا ذہن تازہ ہوتا ہے اور جو بھی پڑھا یا سیکھا جائے وہ ہمیں جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب سے ایک سبق پڑھنے والے ہیں، لیکن اس سبق سے پہلے آپ کو ایک تصویر دیکھتی ہیں اور بتانا ہے کہ اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چلیے، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تصویر؟ دیکھیے، اس تصویر میں کون سی جگہ دکھائی گئی ہے؟ چیٹ باکس میں جواب دیں گے بچوں آپ۔ کون پہچان رہا ہے اس تصویر کو؟ یہ کہاں کی تصویر ہے؟ شاباش، ویری گڈ مدیحہ، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ یہ ہماری کلاس ہے۔ جب ہم اسکول جاتے تھے، ہم کلاس میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے تھے نا۔ یہ ہماری کلاس ہے۔ دیکھو، دیوار پر بورڈ لگا ہوا ہے، ایک کونے میں الماری ہے، کھڑکیاں ہیں، دروازہ ہے، بچوں کے بیٹھنے کے لیے ٹیبل کرسی ہے، ٹیچر کے لیے ٹیبل کرسی ہے نا؟ لیکن یہ کیا، یہاں کوئی نہیں ہے؟ یہ جماعت بالکل خالی پڑی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آج کل ہم سب اپنے اپنے گھروں سے پڑھائی کر رہے ہیں، آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ اپنے موبائل سے آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں نا؟ اور میں آپ کی ٹیچر مہر النساء آپ کو آن لائن پڑھا رہی ہوں۔ بچوں، لیکن جب ہم اسکول جاتے تھے، آپ جماعت اول میں تھے اور اسکول جاتے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ اپنی اسکول کو بھول تو نہیں گئے؟ جب ہم اسکول جاتے تھے تو پڑھائی شروع کرنے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ بتاؤ تو ذرا، یہ کیا کر رہے ہیں بچے کھڑے رہ کر؟ لائن سے سب بچے کھڑے ہو جاتے تھے بڑے ادب سے، اور پھر سب مل کر کیا پڑھتے تھے؟ جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے بچوں؟ شاباش، ویری گڈ ویری گڈ، سلما نے بالکل صحیح بتایا۔ ہم دعا پڑھتے تھے، ہے نا؟ دعا ہوتی تھی سب سے پہلے، اور دعا پڑھنے کے بعد یعنی پیش درس کے بعد ہم اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جاتے تھے، جہاں پر ہمیں اپنے استاد پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بچوں، کیا ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر کلاس میں آتے ہی کتاب اٹھا کر پڑھانا شروع کر دیتے تھے؟ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ ان کے پاس ایک بڑی سی بک ہوتی ہے جس میں سب بچوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور سر جو ہے، اپنے استاد جو ہے، وہ ایک ایک بچے کا نام پکارتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا لینا کہتے ہیں اسے؟ چیٹ باکس میں جواب دیں گے۔ شاباش، ویری گڈ، بشرا اور بہت سے بچے صحیح جواب دے رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حاضری لینا، ہے نا؟ پہلے، سب سے پہلے جو ہے کلاس میں حاضری ہوتی ہے، کون کون آیا ہے، کون نہیں آیا، ہے نا؟ سر پوچھتے نا کہ ہاں چلو یہ بچہ آیا ہے، سب کا نام لیتے ہیں اور سب بچے خوشی خوشی حاضری دیتے ہیں۔ جی جناب، حاضر جناب، یس ٹیچر، پریزنٹ ٹیچر بولتے ہیں نا، تو اسے حاضری دینا کہتے ہیں۔ تو ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ بھی دوسری جماعت کا ہی ایک سبق ہے، جس میں استاد بچوں کی حاضری لے رہے ہیں، اور اس وقت بچوں میں اور استاد کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ ہم پڑھیں گے اور کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں، اور ہمارے سبق کا نام ہے نور اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا 8واں سبق ہے اور اس سبق کا نام ہے نور اللہ۔ چلیے، اب ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ نئے الفاظ پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ سبق پڑھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اب دیکھتے ہیں سب سے پہلا لفظ کون سا آ رہا ہے۔ شاباش، یہ سب سے پہلا لفظ ہے جماعت۔ کیا ہے یہ؟ پہلے جماعت۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جماعت یعنی کیا؟ چیٹ باکس میں جواب دیں گے۔ شاباش، ویری گڈ ویری گڈ، بہت سے بچے جواب دے رہے ہیں۔ جماعت یعنی کلاس، ہے نا؟ جیسے آپ دوسری جماعت میں پڑھتے ہیں یعنی دوسری کلاس میں پڑھتے ہیں، تو جماعت یعنی کلاس۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا لفظ کون سا ہے۔
उस्ताद, देखो अलीफ पर पेश है, उस्ताद, है ना। उस्ताद हम किसे कहते हैं? अपने टीचर को, जो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उस्ताद। अब उसके बाद है हाज़री, हाज़री, उस्ताद हाज़री लेते हैं ना सबकी, एक एक बच्चे का नाम पुकारते हैं, सब अपनी हाज़री देते हैं। उसके बाद है जनाब, जनाब, हम अपने उस्ताद को एहतराम से जनाब भी कहते हैं। जैसे अरबी पढ़ाने वाले मौलाना आते हैं तो आप कहते हैं ना जनाब जी आ गए, है ना। तो जनाब यानी हम जो उस्ताद को एहतराम से पुकारते हैं वो नाम जनाब। उसके बाद है हमेशा, हमेशा, और फिर उसके बाद लफ्ज़ है पूछ, कोई बात पूछते ना मालूम करने के लिए, पूछ। उसके बाद है सही। बच्चों, इस सही लफ्ज़ का उलट मायने वाला लफ्ज़ पता है आपको क्या है? सही का उलट मायने वाला लफ्ज़ क्या आएगा? चैट बॉक्स में जवाब देंगे। सही का उल्टा जवाब देंगे बच्चों, चैट बॉक्स में लिखेंगे सब। शाबाश, वेरी गुड, वेरी, बहुत से बच्चों ने लिखा है गलत। सही का उलट लफ्ज़ क्या आएगा? गलत, वेरी गुड। अब उसके बाद लफ्ज़ है दोस्त, दाल वाव सीन ते, दोस्त। हमने इससे पहले भी दो दोस्तों की कहानी पढ़ चुके हैं ना, खालिद और हामिद की, वो भी दोनों दोस्त थे। अब इस सबक में भी लफ्ज़ आया है दोस्त। अब लेकिन ये दूसरे दो दोस्तों की कहानी है, ठीक है। दोस्त, दोस्त का उलट लफ्ज़ उस दिन बताया गया था आपको। दोस्त का उलट लफ्ज़ क्या है? चैट बॉक्स में जवाब देंगे। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। दोस्त का उलट लफ्ज़ है दुश्मन। शाबाश, वेरी गुड। दोस्त का उलट है दुश्मन। अब देखो ये कौन सा लफ्ज़ है? मुस्कुराते। देखो इसमें भी मीम के ऊपर पेश है ना। जैसे उस्ताद में अलीफ पर पेश है, पूछ में वाव पर उल्टा पेश है, और मुस्कुराते में भी मीम पर पेश आया है। उसके बाद लफ्ज़ है हुरूफ, हुरूफ, इसमें वाव के ऊपर उल्टा पेश आया है। और बच्चों आपको पता है हुरूफ किसे कहते हैं? आपने उर्दू ज़बान जब सीखी तो आपको सबसे पहले अव्वल जमात में हुरूफ सिखाए गए, है ना। कुछ हुरूफ, कुछ तस्वीरें दिखाई गई, तस्वीरों से हुरूफ सिखाए गए। तो हुरूफ यानी अलीफ, बे, ते, से, ये जो आपने सीखा है ये सारे हुरूफ हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, बोलो ध्यान। मैं कहती हूँ ना ध्यान से सुनो, तो ये लफ्ज़ है ध्यान, यानी गौर से सुनो, पूरा जहन, पूरा मन लगा कर सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से सुनो। उसके बाद है लफ्ज़ सीखे। ये लफ्ज़ हमारे पास पहले भी आ चुका है कंप्यूटर नज़्म में, हमने पढ़े थे ना, सीख के कंप्यूटर बच्चों अपने ख्वाब को सच कर लो। उसमें लफ्ज़ आया था सीख, अब इसमें बड़ी ए के साथ आया है सीखे। अब उसके बाद देखते हैं क्या आया है लफ्ज़ पढ़ते, बोलो पढ़ते। अब लफ्ज़ आया है ठीक, ठ से ठीक। उसके बाद है पुकारें, यानी किसी का नाम लेकर पुकारना, पुकारें। उसके बाद है दोहराओ, दोहराओ यानी दोबारा कहना। जैसे मैं यहाँ पर कह रही हूँ, आप अपने घर में बैठकर बोल रहे हैं ना, मेरे बात दोहरा रहे हैं ना, उसको दोहराना कहते हैं, यानी दोबारा कहना, सुनकर दोबारा बोलना। उसके बाद है अब्दुस समद। ये देखो जो नाम आया है, अब ये किताब में हम जो सबक पढ़ने वाले हैं नूरुल्लाह, उस सबक में ये नाम आए हैं, बोलो अब्दुस समद। उसके बाद है अब्दुस सलाम, अब्दुस सलाम। उसके बाद लफ्ज़ आया है नूरुल्लाह, नूरुल्लाह। अब देखते हैं कौन सा नाम आया है, ये अब्दुल करीम, बोलो अब्दुल करीम, ठीक है। बच्चों अब हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं, देखते चलो। सबक नंबर 8 नूरुल्लाह। मैंने बताया था ना आपको, ये जो सबक है वो दूसरी जमात में ही उस्ताद और बच्चों के दरमियान होने वाली बातें हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। दूसरी जमात के उस्ताद बच्चों की हाज़िरी ले रहे हैं, यानी उस वक्त बच्चों की हाज़िरी चल रही है, ठीक है। उस्ताद,
अब्दुस्समद, यानी वो अब्दुस्समद का नाम पुकारते हैं। अब्दुस्समद। हाजिर जनाब, अब्दुस्समद अपनी हाजिरी बयान करता है, हाजिरी दे रहा है। फिर अब उस्ताद, अब्दुस्सलाम, अब्दुस्सलाम जी हाजिर हूँ, यानी अब्दुस्सलाम भी हाजिरी देता है। अब अब्दुस्सलाम देखो क्या कह रहा है। अब्दुस्समद, जनाब मेरा नाम अब्दुल समद है, आप हमेशा मुझे अब्दुस्समद क्यों पुकारते हैं? वो बच्चा क्या कह रहा है, अब्दुस्समद, कि मेरा नाम अब्दुल समद है, यानी दाल के बाद लाम की आवाज़ भी पढ़ रहा है वो। हाँ, और उस्ताद से पूछ रहा है कि आप मेरा नाम अब्दुस्समद इस तरह से क्यों पुकारते हैं? अब्दुस्सलाम, अब अब्दुस्सलाम क्या कह रहा है देखते हैं। और जनाब मुझे भी आप अब्दुस्सलाम कहते हैं, मेरा नाम तो अब्दुल सलाम है, यानी जिस तरह अब्दुस्समद ने अपना नाम अब्दुल समद बताया, अब्दुस्सलाम भी अपना नाम उस्ताद को अब्दुल सलाम बता रहा है। ठीक है, इसे याद रखना। अब उसके बाद देखते हैं उस्ताद ने क्या कहा। देखो, उस्ताद मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखते हैं। अच्छा किया जो तुमने ये बात पूछ ली, यानी उस्ताद खुश होते हैं कि बच्चों ने उनसे सवाल किया है, क्योंकि सवाल करने से ही बच्चे सीखते हैं ना, सवाल करने से ही हमें इल्म का इजाफा होता है, हम सीखते हैं। अगर हम खामोश से सुनते रहेंगे और कुछ पूछेंगे ही नहीं, तो बताने वाला हमें उतना ही बताएगा जितना उसे बताना है। लेकिन अगर हम सवाल करेंगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों को जो है उस्ताद मुस्कुरा कर देखते हैं और फिर क्या कहते हैं, अब्दुस्समद की तरफ देखकर, तुम्हारा नाम अब्दुस्समद ही है, इसी तरह तुम्हारे दोस्त का नाम अब्दुस्सलाम सही है। अब अब्दुस्सलाम क्या कहता है देखो, आप हमारे नाम इस तरह क्यों लेते हैं? उस्ताद, तमाम बच्चों से, अब वो तमाम बच्चों से मुखातिब नहीं, सब तमाम बच्चों से भी बता रहे हूँ, क्योंकि अभी अब्दुस्समद ने सवाल किया ना, अब यहाँ पर सबको सीखने का मौका मिल जाएगा। अब देखो आज उस्ताद क्या सिखाने वाले हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। तुमने जो अलीफ बे ते के हुरूफ सीखे हैं, इनमें कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि इनसे पहले अलिफ लाम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं, यानी जिस तरह अब्दुस्समद और अब्दुस्सलाम में स्वाद और सीन आया है, इसमें इससे पहले लाम अलिफ लाम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं। अब उस्ताद जो है हुर्फों की मिसाल बता रहे कि कौन कौन से हुरूफ हैं वो, जैसे ते, से, रे, सीन, शीन। अब अब्दुस्सलाम क्या कहता है देखो, जी हाँ मेरे नाम में सीन आती है, यानी फ़ौरन अब्दुस्सलाम को याद आ गया कि अरे हाँ मेरे नाम में तो सीन आती है, इसीलिए जनाब ने मेरे नाम को पुकारते वक्त लाम की आवाज़ नहीं पड़ी। अब उसके बाद देखते क्या लिखा हुआ है। उस्ताद मुस्कुराते हैं और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनसे पहले लाम पढ़ी जाती है, जैसे बे, जीम, हे, काफ, काफ। अब उन्होंने उस्ताद ने ये भी बताया कि तमाम हुरूफ ऐसे नहीं होते कि जिसमें अली लाम नहीं पढ़ी जाएंगी, बल्कि कुछ हुरूफ ऐसे भी हैं जिनसे पहले लाम पढ़ी जाती है। अब अब्दुल करीम, अब्दुल करीम एक तीसरा बच्चा है, अब वो क्या कह रहा है, जनाब जैसे मेरा नाम अब्दुल करीम है, यानी उसे पता है ना कि अब उस्ताद उस अब्दुल करीम को अब्दुल करीम ही कहते हैं, तो फ़ौरन उसने कहा कि जनाब जैसे मेरा नाम अब्दुल करीम है, और अभी उस्ताद ने बताया ना कि बे, जीम, हे, काफ और काफ, तो करीम का काफ, काफ आया ना उसमें, तो काफ से पहले लाम पढ़ी जाती है। उस्ताद, हाँ तुमने ठीक समझा, तुम्हारे नाम में अब्दुल पढ़ना सही है, अब्दुल करीम को अब्दुल करीम और अब्दुल जब्बार को अब्दुल जब्बार पुकारेंगे। अब देखो मैं कुछ और नाम बोर्ड पर लिखता हूँ। अब देखो उस्ताद और नाम बोर्ड पर लिखते हैं, कौन सा नाम लिख रहे हैं देखते हैं। उस्ताद नजमुन्निसा नाम लिखकर बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं, बुलंद आवाज़ में यानी ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। नजमुन्निसा, बच्चे दोहराते हैं, नजमुन्निसा। उस्ताद, इसे अलिफ लाम के साथ लिखा गया है,
मगर अलिफ लाम के बगैर पढ़ेंगे। अब दूसरे नाम देखो, नूरुल्लाह। बच्चे नूरुल्लाह पढ़ते हैं, उस्ताद मुस्कुराते हैं। नूरुल्लाह यानी मुस्कुराते हुए फिर उस्ताद पढ़ते हैं, नूरुल्लाह। बच्चे दोहराते हैं, नूरुल्लाह। उस्ताद इसे इस तरह लिखेंगे, बोर्ड पर नूरुल्लाह लिखते हैं और नूरुल्लाह पढ़ेंगे। अब्दुल रशीद, शमसुद्दीन, करीमुद्दीन ऐसे ही नाम हैं। देखो अब उस्ताद ने इतने भी 3 नाम लिखे हैं, इसमें किसी में भी लाम नहीं पढ़ा गया है ना। अब उसके आगे देखते हैं। अब इन नामों को सुनो और सुनकर दोहराओ। अब्दुल बाकी। बच्चे अब्दुल बाकी। उस्ताद इस नाम को अलिफ लाम के साथ लिखेंगे और लाम के साथ बोलेंगे। उस्ताद बोर्ड पर अब्दुल बाकी लिखते हैं। ऐसे दूसरे नाम और हैं, जैसे नूरुल ऐन, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक। अब अब्दुल करीम देखो क्या कहते हैं, अब्दुल करीम। और जनाब मेरा नाम भी अब्दुल करीम है। पहले भी उसने टोका था ना कि हाँ मेरे नाम में काफ आती है, इसलिए मेरे नाम में लाम पढ़ी जाएगी। और अब फिर उसने कहा कि जनाब मेरा नाम भी अब्दुल करीम है, यानी मेरे नाम में लाम पढ़ी जाती है। दोबारा उसने कहा तो सब बच्चे हंसने लगते हैं। ठीक है, अब हम कुछ नामों को पढ़ने की मशक करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले मुझे बताओ कि आपने ये जो सबक सुना अभी, इसमें आपने क्या समझा। ठीक है, अब सवाल आएगा, आपको जवाब देना है चैट बॉक्स में। देखो सवाल है, अब्दुस समद ने उस्ताद को अपना क्या नाम बताया। क्या नाम बताया था उसने, चैट बॉक्स में लिखेंगे बच्चों। अब्दुस समद ने उस्ताद को अपना क्या नाम बताया। वेरी गुड, शाबाश। अब्दुस समद ने अपना नाम बताया अब्दुल समद, यानी लाम के साथ उसने पढ़कर अपना नाम बताया, अब्दुल समद। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब्दुस सलाम को अपना नाम किस तरह पुकारना सही लगता था। अब्दुस सलाम को अपना नाम किस तरह पुकारना सही लगता था, यानी अब्दुस समद ने जब अपने नाम की इस्लाह करवा रहा था तो अब्दुस सलाम ने भी कहा ना कि जनाब आप मेरा भी नाम इस तरह नहीं इस तरह लेते हैं, तो किस तरह लेने के लिए कह रहा था वो, चैट बॉक्स में जवाब देंगे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सलमा, मदीहा, वेरी गुड, सब बच्चों ने सही जवाब दिए, बहुत से बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। उसने कहा था कि उसका नाम अब्दुल सलाम इस तरह से लिया जाए। ठीक है, अब्दुल सलाम कह रहा था वो। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। क्या अब्दुस समद और अब्दुस सलाम इन नामों में स्वाद और सीन से पहले लाम पढ़ना सही है। ध्यान से सुनो, क्या अब्दुस समद और अब्दुस सलाम इन नामों में स्वाद और सीन से पहले लाम पढ़ना सही है। जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ वो सही है क्या। अब्दुस समद या अब्दुल सलाम पर अब्दुल समद पढ़ेंगे, उसे किस तरह से पढ़ेंगे, क्या लाम पढ़ना सही है इसमें। क्या जवाब आएगा इसका, चैट बॉक्स में जवाब देंगे, जी हाँ या जी नहीं। ठीक है, अब्दुस समद और अब्दुस सलाम में स्वाद और सीन से पहले लाम पढ़ना सही है। शाबाश, वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया कि इसमें लाम पढ़ना सही नहीं है, तो जवाब रहेगा जी नहीं। अब सवाल है, क्या अब्दुल करीम में काफ और अब्दुल बाकी में बे से पहले लाम पढ़ना सही है। देखो इस नाम को जब मैं पढ़ रही हूँ उसी में जवाब छिपा हुआ है, अब्दुल करीम, अब्दुल बाकी, इसमें लाम पढ़ना सही है। शाबाश, चैट बॉक्स में जवाब देंगे बच्चों, क्या लाम पढ़ना सही है इसमें। अब्दुल करीम को अब्दुल करीम कहेंगे ना, या कुछ और किसी और तरीके से पढ़ेंगे। शाबाश, जवाब आया जी हाँ, यानी अब्दुल करीम और अब्दुल बाकी में लाम पढ़ना सही है। अब बच्चों हम कुछ नामों को पढ़ने की मशक करेंगे। चलिए, आपको ध्यान से सुनना है और गौर से लफ्ज़ों की तरफ देखना है कि उसमें देखो लाम लिखा गया है और उसे पढ़ा भी जा रहा है ना। दाल के बाद अलीफ और लाम है, हर लफ्ज़ में दाल, ऐन बे दाल के बाद
عبدل مطلب دال کے بعد الف لام ہے اور اسے پڑھا بھی جا رہا ہے، تو دھیان سے آپ کو ہر لفظ کو دیکھنا ہے، اور یہ کس حرف سے پہلے لام پڑھا جا رہا ہے اسے بھی دھیان میں رکھنا، کیونکہ اگلی بار جب سبق ہوگا تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے گا کہ کن حرفوں سے پہلے، کن حروف سے پہلے جو ہے لام پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سب سے پہلی لائن میں جہاں لکھا ہے ان ناموں میں الف لام لکھتے ہیں اور لام پڑھتے ہیں، اس کے نیچے سے دھیان سے دیکھنا شروع کریں گے۔ عبد الحق، عبد القدوس، عبد الکریم، عبد الاحد، عبد الخالد، عبد الوہاب، عبد الفیصل۔ اب آگے دیکھتے ہیں کون سے الفاظ، کون سے نام آ رہے ہیں جن میں لام پڑھنا صحیح ہے۔ عبد العزیز، عبد الجبار، عبد الباقی، عبد الغنی، عبد المالک، عبد الہادی، عین الیقین۔ بچوں آپ کو یہ نام بہت مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن جب آپ کو اگلی بار جب سبق ہوگا تو آپ کو ایک طریقہ سکھایا جائے گا، ایک بہت آسان طریقہ، جس میں یہ سارے حروف آپ کو یاد ہو جائیں گے کہ کس حرف سے پہلے آپ لام پڑھیں گے اور کس حرف سے پہلے آپ لام نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ابھی صرف سننا ہے، دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ نام اس طرح سے پڑھے گئے تھے۔ اب ہم نئے نام پڑھیں گے، دوسرے نام جس میں لام نہیں پڑھی جاتی، یعنی ان ناموں میں الف لام لکھتے تو ہیں لیکن لام پڑھتے نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کون سے نام ہیں وہ۔ اب میں پڑھ رہی ہوں بچوں، آپ دھیان سے اس کے ہجے کی طرف دیکھو، جہاں پہ تلفظ بتایا گیا ہے نا توڑ کر، وہاں پر دھیان سے دیکھو کہ وہاں پر الف لام نہیں نظر آ رہا ہے نا، جبکہ نام میں آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے، لیکن جب اسے توڑ کر پڑھا گیا ہے تو وہاں پر الف لام کی آواز نہیں لکھی گئی، وہاں الف لام نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو پہلا لفظ ہے شمس تبریز، اس کے بعد ہے دار الثواب، کریم الدین، قائم بالذات، عبد الرشید، قمر الزماں، عبد الستار، دار الشفا، عبد الصمد۔ دیکھو یہ نام آیا تھا نا سبق میں بھی، عبد الصمد، دار الضرب، عبد الطاہر، تخت الظفر، قائم اللیل، نور النساء۔ بچوں آپ کو یہ نام بھی مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن ان ناموں کے پیچھے جو راز چھپا ہے وہ اگلے سبق میں آپ کو بتایا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ سبق بہت آسان ہو جائے گا۔ جب اس کی مشقی سرگرمیاں کروائی جائیں گی نا تو آپ کو بہت آسان لگے گا کہ کون سے حرف سے پہلے آپ کو الف لام یعنی لکھے تو جائیں گے لیکن لام پڑھے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کہاں پر لام پڑھنا ہے کہاں لام نہیں پڑھنا ہے یہ آپ کو بہت آسان لگے گا، لیکن اگلے سبق میں، کیونکہ آج ہم نے سبق کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، اور جب ہم اگلی بار یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھی طرح سے کہ ہم کون کون سے حروف سے پہلے لام پڑھیں گے اور کون سے حروف سے پہلے لام نہیں پڑھیں گے۔ تو ان مشکل ناموں کو دیکھ کر گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ سب آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، کیا آپ کو ایسا کوئی نام یاد آ رہا ہے جس میں لام پڑھا جاتا ہے؟ آپ کے کسی دوست کا نام ہے جس میں لام پڑھا جاتا ہے، یعنی لام کی آواز آتی ہے، اس کا نام جب لکھا جاتا ہے تو الف لام بھی لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں؟ کون بتائے گا کہ کون سا نام ہے جس میں آپ نے سنا ہے؟ بتاؤ، چیٹ باکس میں لکھیں گے بچوں، کوئی نام لکھ کر بتاؤ جس میں لام پڑھا جاتا ہے، یعنی لام کی آواز آتی ہے۔ شاباش، ویری گڈ ویری گڈ۔ دیکھو ایک بچے نے لکھا ہے عبد الحمید، ویری گڈ، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، ویری گڈ۔ ایک اور بچے نے لکھا ہے نور الحق، شاباش، اس میں لام پڑھا جا رہا ہے نا، ویری گڈ، اچھا، شاباش بچوں۔ اور ایک بچے نے لکھا ہے عبد الخالد، ہاں یہ نام ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے نا، اس میں دیکھو پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، عبد الخالد اس میں پڑھا تھا ہم نے،
हाँ, अब्दुल अहद के बाद अब्दुल खालिद यहाँ इसमें भी आया था, है ना। तो अच्छा, अब मुझे बताओ कि ऐसा कोई नाम बताओ जिसमें अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। क्या आपके किसी दोस्त का नाम है जिसके नाम में अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता? जैसे अब्दुस्सलाम, अब्दुस्समद, ऐसा कोई है बच्चा आपकी स्कूल में, आपका कोई दोस्त? बताओ तो ज़रा। हाँ, वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने लिखा है शमसुद्दीन, शाबाश, वेरी गुड। शमसुद्दीन में अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है नूरुद्दीन, वेरी गुड। नूरुद्दीन में भी अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता, है ना। अलिफ लाम लिखा तो जाता है, अब लिखेंगे आइन बे दाल और फिर अलिफ लाम और फिर दाल पर तशदीद और फिर जो है इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। यानी नाम है नूरुद्दीन था ना नाम, नूरुद्दीन, तो नून वाव रे फिर अलिफ लाम दाल पर तशदीद फिर ये और नून, नूरुद्दीन, ठीक है। हाँ, और अब दूसरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कर रहे थे, हाँ ठीक है, अब्दुल रज़्ज़ाक़। अब्दुल रज़्ज़ाक़ में भी अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। यानी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है सबक, और अगली बार इंशाल्लाह सबक और आसान हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कौन से हुरूफ से पहले हमें लाम पढ़ना है और कौन से हुरूफ से पहले हमें लाम नहीं पढ़ना है। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, घर काम। देखो, आपको 5 नाम तलाश करके लिखने हैं। कितने नाम? 5 नाम तलाश करने हैं। इन नामों को तलाश करने के लिए आप अपने अम्मी अब्बा से भी मदद ले सकते हैं, अपने भाई बहनों से मदद ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे नाम आपको तलाश करने हैं जिनमें अलिफ लाम लिखते हैं लेकिन लाम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। जैसे अब्दुस्समद और अब्दुस्सलाम का नाम था ना, ऐसे ही नाम आपको 5 नाम तलाश करने हैं जिसमें अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। करेंगे ना बच्चों? और ये जवाबात लिखने के बाद आपको इसकी तस्वीर निकाल कर व्हाट्सएप करना है ताकि हम देखेंगे कि आपने कौन कौन से नाम लिखे हैं, ठीक है। और आपको ये सब लेकिन लिखना है आज, ठीक है। आज व्हाट्सएप कर देना है ये सब जवाबात लिख कर। आपको इसके लिए अपने भाई बहनों से मदद लेनी पड़ेगी या अपने अम्मी अब्बा से, पड़ोसियों से, किसी से भी जिससे आप बात करते हैं उनसे आप पूछिए कि अगर आपके दोस्तों में ऐसे नाम नहीं हैं तो हो सकता है कि आपके ख़ानदान में किसी का ऐसा नाम हो, ठीक है। तो आप किसी से मालूम कीजिए, किसी से मदद लीजिए और 5 नाम लिखिए और फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए इंशाल्लाह हम अगली बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।